Namaskar, my all dear student of class 12. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus for this session. This video I am just discussing the question answer of Vistas, chapter number 3, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. We have completed the explanation of the chapter, and now first we'll look on the textual question answer, and then we'll see some important question answer from this chapter. So these were from your textbook, page number 19. Read and find out. Question number 1. How do geological phenomena helps us to know about the history of humankind? अब यहाँ पे जियोलॉजिकल फिनोमिना, जियोलॉजिकल इज रिलेटेड टू अर्थ हिस्ट्री, वो फिनोमिना हमको कैसे हेल्प करता है जिससे कि हम ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री के बारे में जान सकें. द जियोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्टिनेंट एंड वाटर बॉडीज फ्रॉम वन कॉम्पैक्ट लैंड मास टेल अस अबाउट द एज ऑफ existence of human race on the earth. 650 million years ago, no human race existed on the earth because the environment was not favorable. After the time when the dinosaurs were wiped out, the mammals started existing, and after the separation of landmass, the human race started flourishing on the earth. तो यहाँ पे कैसे पता चलता है हमको ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री के बारे में? ऐसे ही पता चलता है कि पहले कैसे जो छोटे छोटे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले वो सुपर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे. वो सारे एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, जो कि कितना लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है. और तब क्या था, तब जो एनवायरनमेंट था वो फेवरेबल नहीं था ह्यूमंस के रेस के अकॉर्डिंग, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमंस का एज नहीं आया था. तब डायनासोर्स का एज था, और जब डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उसके बाद मैमल्स यानी कि ह्यूमंस आए, और तभी से ये जो सेपरेशन है वो लैंड मास का होने लगा. मतलब ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट दे स्टार्टेड डिवाइडिंग द सुपर कॉन्टिनेंट इनटू सब कॉन्टिनेंट्स, एंड उसके बाद वो फ्लरिश या डेवलप करने लगे. तो हमको हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड जियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से ही पता चलता है. Next question, what are the indications for the future of humankind? The future of humankind can get in danger if emission of the carbon dioxide and other poisonous gases go into the same manner. These gases deplete at the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun to enter the Earth's environment. This causes the rise in the temperature of the Earth and giving rise to the phenomena called global warming. Increased temperature can melt the ice of the Antarctica and cause other environmental problem. Thus, geopoliticizing is a future of the humankind. Now, geopoliticizing बोल सकते हो आप, the extension of the future means the confusion, the way this is a very perplexed situation, which is what is going to be the future of mankind. Why? Because the future of mankind is just in the hand of human as well. सो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्यूचर है ह्यूमन काइंड का वो डेंजर में क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है. उसके अलावा बहुत सारी अलग जो पॉइजनस गैसें हैं, मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और बहुत सारी मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का जो इमिशन हो रहा है उससे ओजोन लेयर्स डिप्लीट हो रही है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, जिनसे कि जो ओजोन लेयर बचा के रखती है, वो आ रही हैं. बिना किसी लेयर का जब डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द अर्थ, एंड अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. अर्थ मीन्स दिस ओशनिक पार्ट, ओशन पार्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अर्थ, तो ओशनिक और मरीन लाइफ को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. एंटार्क्टिका भी है, उसकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ जाएंगी. मीन्स ईच and every part of the earth, the complete biodiversities will be in danger because of our human activities. Next question, page number 23. The world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? मतलब जो हमारी पृथ्वी की जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे ट्रैप है? अंटार्कटिका में ट्रैप है. इसकी स्टडी इस रीजन की यूजफुल क्यों है? क्यों पता हम लोग को ये पता होना क्यों ज़रूरी है? The study of this region, Antarctica, gives us insight into the world's geological history. It gives an idea how the earth was like before it drifted into the continents and countries. It shows how slight changes in the climate can change the shape of the region. It gives the explanation how the climate condition of the earth were not favorable for life before, and how slowly rising temperature made the earth a place sustained
to sustain a life. All secrets are embedded in the layers of the ice in the form of the 500,000 years old carbon records. वहां जाके ही आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस दैट कैन टेल यू दैट हाउ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड अवे एंड वेंट हियर एंड देयर. पहले पूरा एक लैंड मास था, जो कॉन्टिनेंट सारे उसके बाहर थे, लेकिन धीरे धीरे वो सारे बहकर इधर उधर चले गए. और कैसे धीरे धीरे जो आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और कैसे इस जो रीजन है उसका शेप चेंज हो रहा है. अब यहाँ पे अगर हम लोग अपना देखें तो वेयर एवर द ओपन लैंड पार्ट इज देयर, आफ्टर सम टाइम यू कैन जस्ट सी वन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ओवर देयर, बट दिस इज ह्यूमन मेड, दिस इज नॉट नेचुरल. बट एंटार्क्टिका में व्हेन एवर यू गो, मीन्स इफ यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, थोड़ा सा टाइम अगर आप स्पेंड करो, तो ऑब्वियसली द ग्लेशियर्स वेयर यू हैव सीन, नाउ आफ्टर सम टाइम दे विल नॉट बी देयर. व्हाई? बिकॉज इट इज मेल्टिंग. तो जो रीजन का जो शेप चेंज होता है वो भी आपको एंटार्क्टिका में आके पता चलेगा. नेचुरली आई एम टेलिंग, ठीक है, नेचुरली जो शेप चेंज हो रहा है वो वहां आकर आपका पता चलता है. एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है कि कैसे क्लाइमेट की कंडीशन चेंज हो रही है, जो कि फेवरेबल थी लाइफ के लिए, और धीरे धीरे वो अनफेवरेबल होती जा रही है. कैसे? राइजिंग ऑफ द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो सीक्रेट्स हैं जितने भी हैं वो एम्बेडेड, यानी कि बंधे हुए हैं, हिडन हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स के कार्बन रिकॉर्ड्स में हैं. हमने जो पढ़ा था वहाँ पे एंटार्क्टिका की आइस कोर्स में बहुत सारा कार्बन जो है वो ट्रैप्ड है, जो वहाँ के फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, दे आर हैविंग दिस स्पेशलिटी. यही उनका काम है कि वो जितना कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं. इनडायरेक्टली दे आर, मीन्स वी कैन नॉट से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दे आर डूइंग बेनिफिशियल ऑफ फॉर दीज थिंग्स फॉर अस. और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ जाकर पता चलेंगी? एंटार्क्टिका जाकर पता चलेंगी. इसीलिए जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कहाँ पे ट्रैप है? एंटार्क्टिका में. Next is, what are the Geoff Green's reason for including high school students in the Students on Ice एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन आप बोल सकते हो यात्रा, ठीक है, वो यार जो थी उनकी, उसका उनका एम क्या था स्टूडेंट ऑन आइस का? जियोफ ग्रीन टुक, ये कैनेडियन थे, ठीक है, कैनेडियन, वी कैन से द कैप्टन, ठीक है, हु यूज टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ to Antarctica to let them visit or to know about the Earth history. So Geoff Green took the high school student to one end of the world to provide them opportunity to develop the respect and understanding of the Earth. He wanted to make the future policy makers to experience how difficult it would have been for the Earth to sustain life by rising its temperature. He wanted them to understand that any interference in the nature can cause drastic mishappening in the future when the students see the ice shelves melting and collapsing. They can estimate the kind of environment troubles ahead in their फ्यूचर. उन्होंने ये सोचा कि जो भी हम यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, वीडियो वॉच करते हैं स्क्रीन पे, उससे वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा दैट कैन क्रिएट अ फायर टू सेव दिस अर्थ इन द स्टूडेंट्स हार्ट. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बनाया नियम. पहले वो सेलिब्रिटीज़ को लेके जाते थे, बट स्टूडेंट्स ऑन आइस उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया उसका मेन पर्पस था जो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाना, उनको बताना कि भाई उनको एक अपॉर्चुनिटी देना, उनको अंडरस्टैंड. रिस्पेक्ट आप तभी करोगे व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ the process of working manner of something. जब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी अर्थ कैसे थी, कैसे उसका एवोल्यूशन में आया और आज हम इस कंडीशन में कैसे हैं, only then you can do something in the benefit of that area. तो जो हमारे कल के पॉलिसी मेकर हैं, जियोफ के अकॉर्डिंग जो हमारे कल के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो फ्यूचर मेकर हैं, जब तक वो ये सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि हाँ इतनी डिफ़िकल्टी में भी किस तरह से एंटार्क्टिका है जो टेम्परेचर को लॉक्ड किए हुए है, ट्रैप किए हुए हैं. बट अगेन अगर ये इंटरफेरेंस जो ह्यूमन एक्टिविटी का था वो नेचर में रहा तो जो ड्रास्टिक मिस हैपनिंग होगी, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रियून ओके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो हमको देखने को मिलेंगे और वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे. जब स्टूडेंट्स अपने आंखों से देखेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का जो रिजल्ट है वो क्या है, आइस शील्ड टूट रही हैं, वो अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ भाई एंटार्क्टिका में है, दे कैन सी द कैल्विंग ऑफ द आइस शीट्स, वो देख सकते हैं
collapsing of the snow. वो देख सकते हैं कि because of the global warming the snow is melting, the glaciers are collapsing, and वो estimate कर सकते हैं, वो ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से हम अपने environment को इस सारी trouble से अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं. तो ये उनका मेन पर्पस था. अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो एक तरह से एजुकेशन तो दे रहे हैं, बट ही इज गिविंग द कंट्रीब्यूशन टू सेव दिस अर्थ, राइट. Next question, take care of the small things and the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in the context of Antarctic environment? ये saying दी गई थी, जो मेटाफर था, जिस हमने पढ़ा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि फाइटोप्लैंक्टन्स कितने छोटे छोटे से एल्जी होते हैं, क्रीचर होते हैं, बट वो कितनी बड़ी चीज़ों को होने से रोक लेते हैं. तो यहाँ पर ये saying था, ये इस तरह की जो saying है, ये वाली saying इस चैप्टर में कैसे अप्लाई होती है. This statement has great relevance in the context of the Antarctic environment. A small change in the environment can give rise to drastic development. Antarctica has a small biodiversity. The example of a small grass called phytoplankton can be studied in this context. These microscopic grasses undergo the process of photosynthesis and serve as food for the number of the marine birds and animals. The author says if there is a further depletion of the ozone layer, it will affect the phytoplanktons and the carbon cycle on the globe. This whole process can jeopardize the existence of all the marine bird and animals. So if we take care of the processes carried over by these small grasses are carried out properly, the bigger animals and the birds will fall into the place on their own. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि छोटी चीज़, अगर आप एंटार्क्टिका की एनवायरमेंटल क्लाइमेट कंडीशन को कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर आप ये बोल रहे हो, तो वहाँ पे छोटी चीज़ क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, जो ग्रासेस हैं, जो फ्लोट करती हैं ओशनिक लेयर पे, वो क्या करती हैं? बिकॉज ऑफ और थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे आर जस्ट मेकिंग द फूड for the marine creatures. They are balancing the ecosystem of oceanic life. और अगर ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता रहा तो क्या होगा? जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका जो कार्बन साइकिल है वो इफेक्ट हो जाएगा. मतलब वो जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे विल नॉट सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो जो काम कर रहे हैं, जो बैलेंस कर रहे हैं इकोसिस्टम को, वो नहीं कर पाएंगे. एंड उसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस है मरीन बर्ड्स का, एनिमल्स का, दैट विल बी परप्लेक्स्ड, दैट विल बी जियोपर्डाइज. वो खतरे में आ जाएगा, वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि ये जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे. इसका उपाय क्या बताया है? उन्होंने कहा कि हमको भी छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है. आप अपने लेवल पे जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वो करो, एंड बड़ी चीज़ें अपने आप अपने प्लेस पे आ जाएंगी. जैसे कि वहाँ छोटी छोटी जो एक तरह से क्रीचर है, जो फाइटोप्लैंक्टन, छोटी सी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ग्रास है, वो बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स, बर्ड्स और मरीन क्रीचर्स, इतने बड़े बड़े क्रीचर्स को बैलेंस करके रखती है, उनको सस्टेन करके रखती है. सेम अगर हम अपनी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ को फॉर्म कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, तो जो बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का डेंजर है वो हमारा दूर हो जाएगा. तो छोटी छोटी चीजें कीजिए, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? Antarctica gives us an idea how the Earth would have been like millions of years ago and how it got divided into various each masses. The melting and colliding ice masses also give us an insight into how our future is going to be. If we continue with interference in the working of the nature, moreover, Antarctica holds into the depth of its ice 500,000 years of the old carbon records, which are helpful in understanding the past, present and future of the earth. Therefore, Antarctica is the place which reveals our past, show our present and visualize our future. कैसे है हेल्पफुल? जो अंटार्कटिका की जो आइस कोर्स हैं उनमें हज़ारों साल के कार्बन रिकॉर्ड्स हैं. क्यों रिकॉर्ड हैं? क्योंकि वो अनटच्ड हैं, वहाँ तक कोई जा ही नहीं सकता है. ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे पता लगाना है कि हमारा अर्थ पास्ट में कैसा था, तो यू कैन द बेस्ट प्लेस, द आइडियल प्लेस इज अंटार्कटिका, क्योंकि आज वो वैसा ही है जैसे बहुत पहले था.
उसमें उतना अंतर नहीं आया है। मतलब नेचर का जो बर्थ है वो कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको जानने के लिए तो ये हमारा पास्ट हुआ। प्रेजेंट आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि हमारा प्रेजेंट क्या है, वट एवर वी आर डूइंग उसका क्या हाल हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी। एंड फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर जिस तरह से वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है, जिस तरह से डिप्लीशन हो रहा है, जिस तरह से कोलाइडिंग हो रहा है, कोलैप्सिंग हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, उससे आपको एक इंसाइट, एक अंदाजा पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर आगे कैसा होने वाला है। आर यू गोइंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड और नॉट? सो लाइक दिस वी कैन say that yes, it is very helpful in understanding the past, present as well as the future perspective of Earth in Antarctica. These were some textual question. अब थोड़े से important short questions मैं ले रही हूँ, not very long. How did the author reach Antarctica? कैसे पहुंची थी वो? They traveled over 100 years in combination of a car, aeroplane and a ship. In this way they reached Antarctica. Total कितने लोग थे? 52 person. Okay. The Tishani was there and the captain was there और बच्चे थे, उन सबको मिलाकर. What was the wonder author realized reaching Antarctica? क्या wonder उनको देखने को मिला? Expensive white landscape and uninterrupted blue horizon, and its immensity and isolation was wondrous about Antarctica. White landscape जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था कभी भी, जो blue horizon था वो बिल्कुल uninterrupted, कोई भी उसमें interruption नहीं आ रहा था. यहाँ से भी आपको दिख सकता है if you are seeing with the oceanic water bodies जहाँ पे earth मिलती है, but that will be so interrupted. आपको बहुत सारी buildings दिखेंगी, यहाँ पे vegetation है, trees हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज दिखेंगी, आप नहीं देख सकते हो, वो होराइजन जो लाइन है वो नहीं देख सकते. बट इन एंटार्क्टिका दैट वाज क्लियरली विजिबल. ओके, द मीटिंग पॉइंट ऑफ स्काई एंड अर्थ. आइसोलेशन था वहां पे, बिल्कुल अकेला था, एकदम सेपरेट प्लेस था, प्रोफाउंड पीस नहीं थी, ये सारी चीजें थी वो बहुत ज्यादा वंडरस थी. व्हाट वाज गोंडवाना? 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा सा लैंडमार्क था जो कि एग्जिस्ट करता था सेंटर में, और उसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था, और उसका क्या नाम था? गोंडवाना. ठीक है. और अब अगर देखा जाए तो यही जो अमेलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ था, जितने भी सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट थे उनके कॉम्बिनेशन से, कोई भी कॉन्टिनेंट अलग नहीं था, बट धीरे 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 वो अलग हो गया. तो गोंडवाना एक लैंडमार्क था बिल्कुल सेंटर में. ठीक है, बोला जा सकता है रफली अराउंड प्रेजेंट डे इन द सेंटर, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था. How is the present globe shaped which we know today? अभी जो हम लोगों का ग्लोब का शेप है वो पहले वैसा नहीं था. ऐसा कैसे बना, कब बना? Gondwana was forced to separate into countries. The globe was shaped much as we know it today. A cold circumpolar current was क्रिएटेड. पहले जो गोंडवाना था वो एक था, यानी कि एक कॉन्टिनेंट था, पूरा लैंड मास था, वो अलग अलग डिवाइड नहीं था. लेकिन आफ्टर द बर्थ ऑफ ह्यूमन एज, मैमल्स के आने के बाद ये कंट्रीज में डिवाइड हो गया, और वो जो आज हमको शेप देखने को मिलता है ग्लोब में वो वैसा ही था. जब डिवाइड होने के बाद जो शेप निकलता है वो वैसा ही है जैसे आज हम ग्लोब में देखते हैं. और इसकी वजह से कोल्ड सर्कमपोलर करंट क्रिएट हो गया. कोल्ड सर्कमपोलर करंट मतलब आप मान के चलो ये पूरा लैंड मास है. ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है. अब जब मैमल का बर्थ के बाद, एज के बाद, धीरे धीरे वो जो लैंड मास था वो डिवाइड होने लगा. तो जहाँ जहाँ पे भी डिवाइड होगा तो जो जगह बचेगी वो क्या होगा? दैट विल बिकम अ वाटर बॉडी. ओके, तो वहाँ पे जो वाटर बॉडीज बनी बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट, बिकॉज ऑफ दैट सर्कमपोलर करंट स्टार्टेड जनरेटिंग. पानी का जो करंट होता है वो निकलना शुरू हुआ. करंट से मतलब सर्कमपोलर करंट, दिस इज फ्रॉम वेयर द करंट और द वाटर फ्लो इज गोइंग एंड विद विच स्पीड, एंड दैट इज मेंटेनिंग द लेवल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. What does one feel in Antarctica? How is it captured visually? कैसा फील कर सकता है कोई, और क्या देख सकता है, कैसे कैप्चर कर सकता है? By visiting the Antarctica, we can understand the Earth past, present and future. A visit there can go to teach next generation to understand and value our planet. Antarctica also holds within its ice cores 500,000 years of old carbon records, which help us to study climate change
बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड ये अपनी आइस कोर्स में सबसे नीचे कार्बन के रिकॉर्ड्स भी रखता है, जो जिससे आपको स्टडी करने में अर्थ का ओरिजिन, अर्थ का एवोल्यूशन जानने में हेल्प मिलेगी। और क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विजिबल चेंज हो रहे हैं, नेचुरल चेंज हो रहे हैं, वो आपको वहाँ पे जाकर देखने को मिल सकते हैं। What was the Student ICE program? The program was Student on ICE with the motive to give high school student the educational opportunity to do study of Antarctica. वहाँ जाकर जितना आप एंटार्क्टिका को देखोगे उसके बाद उसके बारे में और स्टडी करने का जो एम है वो था Student on ICE का। Who was Geoff Green? What did he offer to the student? Geoff Green was a Canadian explorer and educator and the founder of the program Students on ICE. I think at one place I have said Carter because one Geoff Carter was there, so this was not Geoff Carter, it is Geoff Green, जो explorer थे, जो voyager थे, ठीक है, and educator भी थे of course, and he started to include the learners, willing person and school student. क्या क्या कौन कौन था? लर्नर थे, विलिंग पर्सन थे एंड स्कूल स्टूडेंट्स फॉर द मिशन, एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी for the beginners to study more and more about the planet and ecosystem system. तो जियोफ ग्रीन थे वो जो कैनेडियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था, जिसमें उनको जितने भी सीकर्स थे, जो लर्नर थे, जो सीखना चाहते हैं, जो विलिंग पर्सन थे, जो वहाँ पे जा सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो किस मिशन पे जाना चाहते हैं, जिनको वहाँ के अंटार्कटिका के प्लैनेट, वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में जानना था, अर्थ हिस्ट्री के बारे में जानना था, उस पर स्टडी करनी थी। उन सब लोगों को ध्यान में रखकर अर्थ की सेफ्टी का एक मेन ऑब्जेक्टिव लेकर उन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था। What was the reason of the success of program Student on ICE? क्यों सफल रहा? इसका रीजन क्या था? The program becomes so successful because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. Through this program, the students got the educational opportunity. South और North Pole पे जाना it's not possible. Means कोई भी जाने के बारे में क्यों सोचेगा जब तक कोई solid purpose या objective नहीं हो। तो यहाँ पे जो main purpose था that was educational opportunity that was really related to save our own earth, and that's why keeping this mind ये जो Student on ICE program था ये बहुत ज़्यादा सफल रहा। ठीक है। How many members reached Antarctica and what did they find there? There were all 52 of us kitted out in Gore-Tex. Okay, this is called Gore-Tex. And glare, walking on the stark whiteness that seemed to. So there were all 52 of us knitted out in Gore-Tex and glares, walking on the stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meter-thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shape of the banyan tree. तो लगभग 52 लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने वहाँ का जो ब्रीदिंग आइस ब्रीदिंग फैब्रिक होता है वो पहना, उन्होंने जितने भी इक्विपमेंट्स थे जो भी ज़रूरी थे वो उन्होंने लिए थे। और गैंग प्लैंक, जब उनका जो शलास्की था वो फंस गया था, शुकैल्स्की फंस गया था जब उनका शिप एक हमारा जो पेनिनसुला था और टेडपोल आइलैंड के बीच में जब फंस गया था, तो फिर जो कैप्टन थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम वापस चलेंगे, बट उससे पहले उन्होंने कहा कि चल जस्ट वी डू वॉक ऑन द ओशन। ठीक है, तो वॉक ऑन द ओशन जब उन्होंने किया था तब का बताया उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी थी। उन्होंने देखा कि जो वहाँ जब वो चल रहे थे, स्टार्क वाइटनेस, एक तो पूरा वाइट था, मीन्स हर तरफ ऊपर नीचे जहाँ भी वो देख रहे थे वाइटनेस, द वाइट लैंडस्केप वर देयर। उनके जो फीट के नीचे था वो मीटर थिक आइस पैक्स था, जो जिस आइस शीट पर वो चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, और उसके नीचे 180 मीटर्स का जो लिविंग ब्रीदिंग सॉल्टी वाटर था। वाई इट इज़ रिटन बिकॉज मरीन क्रीचर्स वर ऑल्सो लिविंग देयर, सील हुए, पोलर बियर हुए, बहुत सारे होते हैं जो मरीन बियर।
इन द पेरीफेरी, और जो पास थे, आसपास के जो थे, पेरीफेरी इज कॉल्ड नियर बाय, आसपास उन्होंने देखा कि क्रैब ईटर सील्स जो थे वो स्ट्रेच किए हुए लेटे हुए थे, मतलब आइस जो शीट्स थी उनके ऊपर लेटे हुए थे, आराम से रेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बैनियन ट्री के नीचे डॉगीज रेस्ट करते हैं, सोते हैं, बिल्कुल वैसे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की थी व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द ओशन, ठीक है, जब वो शिप से नीचे उतर के आए थे, बाकी तो वो शिप से सारी चीज़ें देख ही रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल टेक्स्ट से उठाई गई हैं, जैसा तिशानी ने बोला है, दैट्स वाई it is written us, okay, first person pronoun में है, because as it is the text line. So if you have this opportunity ना, आप text line लिखा करो exactly from the book, ठीक है, आप अपने फ्रेम कर तो कर ही सकते हो अपनी लैंग्वेज, बट इफ़ यू आर राइटिंग द टेक्स्ट ऑफ द बुक, सम टाइम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है, सम ऑफ द लाइन्स इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, देन इट विल रियली इम्प्रेस द एग्जामिनर, एंड ही विल थिंक, ही और शी विल थिंक दैट यस दिस स्टूडेंट डेफिनेटली हैज़ गॉन थ्रू विद द टेक्स्ट, क्योंकि ज़्यादातर सबको ये पता होता है रेफरेंस बुक से या थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख के आप लोगों ने पढ़ाई की है, एंड देन यू हैव कंप्लीटेड, बट एग्जैक्टली इफ यू आर राइटिंग द फ्रेमिंग क्वेश्चंस दैट फोर्स the examiner to just make a perspective about you कि हाँ इस स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, तो उसका कुछ अलग ही चीज़ होता है। फिर छोटी मोटी मिस्टेक्स को जस्ट इग्नोर करके यू कैन रियली ग्रैब द मार्क्स, राइट। सो इसके लिए टेक्स्ट रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट वाज academic Shukalsky, what was its mission and how was it accomplished? ये लॉन्ग आंसर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, आपका टेक्सचुअल से नहीं है। द एकेडमिक शुकाल्स्की एक तरह से क्वेश्चन आंसर से आपका पूरा एंटायर रिवीजन हो जाता है, ओके, सो गो थ्रू विद दीज क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली। Academic Shukalsky was a Russian research vessel. Vessel is called ship. Russian का research vessel था. It was having all the facilities. Its mission was to take all the 52 members to Antarctica safely under a program Student on Ice. It offered the students a life-changing experience at an age when they were ready to observe, learn and act accordingly. The program became successful, making the students aware of the danger of the global warming. The program Students on Ice was success because it offered a life-changing exposure to the future generation of policymakers and an age when they could absorb, learn and act. It provided them with inspiring educational opportunities which would help them foster or a new understanding and respect for the planet. सो यहाँ पर जो एकेडमिक शुकाल्स्की है उसने 52 मेंबर्स को साथ लिया, उसका मेन पर्पस था उन सबको साथ में लेके जाना, सेफली लेके जाना और सेफली वापस लेके आना, एंड इट डिड। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये एक रियल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो बट ये एक्सपीरियंस आप दोबारा नहीं ले सकते हो। एक प्लेस पे वट एवर यू आर विजिटेड आप बार बार जा सकते हो, बट अंटार्कटिका वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट, ऑब्वियसली दिस विल बी वंस इन अ लाइफ टाइम experience as well. And यहाँ पर बच्चों को पता चला कि whatever they are getting, how can they absorb that, what they have learned and how they will do the action according, keeping all these information and knowledge in their mind. ये global warming के from में भी students को aware करता है, उसके dangers के बारे में भी, and ये और भी successful था because ये हमारे जो future generation है, जो policy maker हैं, they are keeping all these things in their mind and they will definitely act accordingly. यानी कि जो उनका action होगा, जो भी means course of action होगा afterwards in the future, that will definitely not in the harm फेज ऑफ दिस अर्थ, वो हमेशा उसके बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है जो उनको एक तरह से हेल्प करती है नई और अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए अपने प्लैनेट के लिए, प्लैनेट के थ्रू, वो चीज़ जो हम देखते हैं। What was Gondwana? What had happened for 500 million years? How is Antarctica helpful to find history of the Earth? I'm so sorry. Helpful to find the history of the Earth. 650 billion years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. For 500 million years, Gondwana thrived. यानी कि 650 million years ago तो जो गोंडवाना था वो बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं।
एंड उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो पे ये क्या हुआ, थ्राइव्ड होना शुरू हुआ. थ्राइव्ड इज कॉल्ड ग्रू होना शुरू हुआ. ग्रू मतलब डिवाइड होना शुरू हुआ. और उसके बाद अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोरस वर वाइप्ड आउट, दिस इज नॉट बी, दिस इज डी. ओके, dinosaurs were wiped out and the age of the mammal got under the way. The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. Only Antarctica on this earth presently in its the purest and the original form as it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice. Antarctica has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. So Antarctica is the place to go to understand the Earth's present, past and future. 650 ईयर्स पहले तो गोंडवाना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, सुपर कॉन्टिनेंट था. बट 500 मिलियन ईयर्स अगो ये धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हुआ. क्यों? क्योंकि मैमल्स का एज आ गया था, कंट्रीज बनने लगे, बॉर्डर्स बनने लगे, ठीक है, लैंडमार्क्स अलग अलग हो गए, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए. और उसके बाद ये जो ग्लोबल है वैसा बन गया जैसा कि आज हम इसको जानते हैं. बस सिर्फ एक पार्ट था जो अनटच था, वो था एंटार्क्टिका, जो टुवर्ड्स साउथ पोल चला गया था. बाकी सारे थे वो ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर ईस्ट की नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हो गए थे, बह के ऊपर चले गए थे, मतलब सब अपने फिक्स हो गए थे. जो एंटार्क्टिका था दैट वेंट टुवर्ड्स साउथ पोल, नीचे चला गया था, एंड दैट वाज अनटच्ड. मतलब वो आज भी प्योर एंड प्रिस्टाइन फॉर्म में है, बिल्कुल जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है. कैसे चेंज हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज, नथिंग एल्स. नेचुरली वहाँ पे इस तरह के कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते हैं. जो डिप्लीशन होता है, जो चेंजेस होते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटायर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, वी कैन से ना द डिग्रेडिंग एक्टिविटीज जो वहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से हो सकता है. अदरवाइज अगर हम बोलें जो सिर्फ एक प्योर, प्रिस्टाइन इज कॉल्ड प्योर, होली, ओके, बिल्कुल ओरिजिनल जो बचा है वो क्या है हमारा? एंटार्क्टिका. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल नेचुरल है. What is there on Antarctica? How is the ubiquitous silence interrupted there sometime? Ubiquitous is called felt everywhere, present everywhere. क्यों वहाँ पे silence है और कैसे वो interrupt होती है? It was a huge expanse of white devoid of any indications of human habitation, such as trees, billboards, buildings. And thus one could lose all the earthly sense of perspective and time. The size of the thing varied from minute to the colossal. Among the thinest were the midgets and mites, and the huge included the blue whales and the icebergs as big as the countries. The day seems to never be because the sun never set in summer, and omnipresent calm was interrupted only by the infrequent avalanche or splitting ice sheet that sanctify the place. The place also held a fascination that forced one to think about the Earth's geological history. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एंटार्क्टिका है वो डिवॉइड है. डिवॉइड इज कॉल्ड विदाउट ट्रीज, विदाउट एनी साइन बोर्ड, विदाउट एनी बिल्डिंग. अब जो भी अर्थ पे जो भी महसूस करते हो कि बिल्डिंग होती है, वेजिटेशन होता है, ह्यूमंस होते हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है. वहाँ पे सबसे छोटी से लेकर बहुत बड़ी, मीन्स बहुत, अगर आप देखा जाए तो बहुत छोटी से लेकर कोलोसल, बहुत बड़ी चीज़ें हैं. एकदम टाइनीएस्ट आप पार्ट बोलोगे, एकदम बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट, तो वो किस फॉर्म में है? मिजिट्स एंड माइट्स. द इंसेक्ट विच कैन फ्लाई एंड नॉट फ्लाई, उसके फॉर्म में बहुत छोटी चीज़ें. और बहुत बड़ी, अगर ह्यूज बोलो, वो चीज़ें भी हैं वहाँ पे, जैसे ब्लू व्हेल्स हुआ, आइसबर्ग्स हुआ. कुछ आइसबर्ग्स तो इतने बड़े हैं जो कि कंट्री के साइज के हैं, जस्ट लाइक द बेल्जियम. एंड यहाँ पर कभी भी जो सन है वो सेट नहीं होता समर में. मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो सन एग्जैक्टली फ्रेम ही नहीं करता है. साउथ पोल है, सन हमारा यहाँ पे है, तो सन कभी आता ही नहीं है. तो यहाँ पे कभी हमेशा लाइट का फ्रेश रहता है. यहाँ पे कभी लगता ही नहीं है आपको कि दिन है या रात है, अब रात हुआ अब दिन हुआ. यहाँ पे हमेशा एक ही जैसा लाइट रहता है. इससे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कभी ऐसा लगता है कि जो सन है वो कभी सेट ही नहीं हुआ. जब सन सेट होगा तभी वहाँ पे डार्कनेस होगा, बट वहाँ पे हमेशा एक सस्टेन, एक मेंटेन्ड लाइट रहती है. ठीक है. इनफ्रिक्वेंट जो एवलांच है, वो जो आपकी जो साइलेंस है वो कैसे इंटरप्ट होती है? कभी कभी कुछ एवलांच आ जाते हैं, जो स्नो स्लाइड हुआ या स्प्लिटिंग ऑफ द आइस शीट, कैल्विंग या ब्रेकिंग ऑफ द आइस शीट, इनकी जो आवाज़ होती है बस उससे वो साइलेंस खत्म हो जाती है. अदरवाइज देयर इज एवरीवेयर द यूबिक्विटस साइलेंस
silence is there, and that's why this place is called sanctified, यानी कि holy, पवित्र है बहुत ज़्यादा. And the place is also have the fascination that force to think about the geological history. एक temptation वाली चीज़ है कि हाँ हमारी अर्थ कैसी होगी. जिनको इस तरह की क्यूरियोसिटी होती है उनके लिए ये प्लेस आइडियल है, अंटार्कटिका. Next question, what was the student on ice program, what was its aim and why it became successful? We have just gone through that. If you want, you can just go through that again. अलग-अलग फॉर्म से questions पूछ ले जाते हैं. We have already discussed this. Describe the passengers trading on Antarctica, what life was surviving there and what did they learn from Antarctica. अब यहाँ पे एंटार्क्टिका जाने के बाद कैसे सर्वाइव करोगे, क्या सीखोगे, वो सब बताना है. द जर्नी स्टार्ट्स विद अ ट्रूप ऑफ 52 people under the guidance of experienced Canadian Geoff Green, an educator and adventure. Then academic Shukalsky, a Russian vessel, was carrying over 52 people to Antarctica, crossing 9 time zones, 6 checkpoints and 3 water bodies, and at least as many ecosphere. They traveled over 100 hours in the combination of car, aeroplane and ship, and finally they reached. They saw Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon, where immensity and isolation made them wondrous and tireless. Antarctica's sub-zero temperatures are not suitable for human. This is the second part. पहले first part समझते हैं कि कैसे academic Shukalsky जो 52 people को लेके गया था, 9 time zones क्रॉस किए, 6 check points क्रॉस किए, 3 water bodies क्रॉस की, लगभग 100 hours की जर्नी थी, जो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सबको क्रॉस करके फिर वो एक्सपेंसिव लैंड ऑफ द वाइट एंटार्क्टिका, वहाँ पर वो गए थे जहाँ पे उन्होंने अनइंटरप्टेड हॉराइजन को भी देखा और इमेंसिटी, पीसफुल, प्रोफाउंड पीस थी वहाँ पे, प्रोफाउंड सिरेनिटी ऑफ द वाइट एंड द ब्लू हॉराइजन कैन बी सीन. और वो प्लेस वो कैसा था, बिल्कुल आइसोलेटेड यानी सेपरेट था. अब यहाँ पे बताया गया कि भाई ह्यूमन वहाँ पे सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते हैं. क्या सीखा, एंटार्क्टिका सब जीरो टेम्परेचर में तो सर्वाइव इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, एंड दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर द ह्यूमन. वाइल penguins, seals and whales are the best known resident of Antarctica. It is preferred place for study the effects of the global warming and its causing. It's here that one can see the effect of the melting glaciers and collapsing ice shelves and how this likely to raise the water levels in the sea and the ocean, as a result of which many low-lying regions will be submerged under the water. So we should be careful about the environment. ज़ीरो है वहाँ पे टेम्परेचर, माइनस में जाता है तो वहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पर. और ये एक परफेक्ट प्लेस है ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस को जानने के लिए. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से हो रहा है, कैसे आइस शीट्स कोलैप्स होती हैं, स्नोफॉल होता है, लॉन्च होता है. और जैसे ये अगर होगा, नीचे आएगा, जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, जो सी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा. जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो जो बहुत छोटे पार्ट हैं, वी कैन से जो लो लाइंग रीजन्स हैं, जो रीजन बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, वो क्या होगा, वो डूब जाएंगे धीरे धीरे. अगर वाटर रेज होगा, आइस जो शीट्स हैं वो मेल्ट होंगी, मेल्ट होके क्या होगा, वो पानी बन जाएंगी. पानी से क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा. तो जो लो लेवल के जो जगह हैं, जैसे ये यहाँ पर अगर कोई भी वाटर बॉडी या कोई भी लैंड पार्ट है, कोई भी बॉडी है, तो वो क्या होगी, वो डूब जाएगी जब पानी का लेवल बड़ा होगा. तो दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर अस एंड वी शुड बी रियली केयरफुल अबाउट द एनवायरमेंट. And it is a collaborative effort we should do. Last question देखते हैं. The words geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? पूरी geological history है वो trap है Antarctica में. This we also have done. ये भी हम कर चुके हैं. The study of Antarctica is useful to us in which mysterious and revealing way. 650 million years ago, Gondwana, a supercontinent, exists centered roughly around the present-day Antarctica, and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. 500 million years, Gondwana thrived, and around the time, the landmass was forced to separate into countries and shaping the globe much as we know today. पहले का जो एनवायरनमेंट था वो नहीं था हमारे लायक, इसीलिए वो हमारी एज नहीं थी. एज वी गॉट द क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू अस, डायनासोर वाइप्ड आउट हो गए और मैमल्स की एज आ गई. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमको कैसे पता चली, एंटार्क्टिका
जाकर। हमको तो तिशानी जोशी ने बताया, वो गई थी अंटार्कटिका, बट एनी हाउ, ठीक है, उनके अपने खुद के जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने बताए। सो अब देखो, एक लोगों ने हमें एक्सपीरियंस बताया, तो ऑब्वियसली आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल डेफिनेटली डू सम रिफॉर्मेशन इन आवर एक्टिविटीज़। सेम ऐसे ही जो 50 लोग गए, 52 लोग जो गए थे, अगर पूरे को बताया जाए, एक लोग भी अगर 100 लोगों को बताएगा तो कितने लोग इसकी नॉलेज में आ गए, एंड देन दे ऑल विल डेफिनेटली डू सम बेनिफिशियल thing about to save the earth planet, right? So we have completed the textual part with some of the important question answer. My advice is please go through the text as well. अपने आप text पढ़ो, ठीक है, try to explain that after watching the video, and you will definitely understand this chapter. Okay, we'll meet in next video.